This conference will now be recorded. Yeah. So students, can you hear me? Yes, sir. Yeah. In the morning, there was one issue that we have created one page layout and we need to assign it to the or we need to assign that page to the page, to the object, to the concern object. But we were trying to assign that page to the concern object. But what the issue was there? We were trying to apply that page layout to the object, but because of we were applying it, it was applied, but because of some cache issue, sometime it happens in Salesforce because it's a cloud. So in cloud, what is happening? Some cache is there. Now, what do you mean by cache? Cache is one type of memory, right? You might have heard about it, right? क्या होता है जब भी आप ब्राउजर से कोई भी डेटा लेके आते हो, सॉरी इंटरनेट से सर्वर से कोई भी डेटा लेके आते हो, राइट? देन व्हाट इज हैपनिंग देयर? वो डेटा आता है सर्वर से, राइट? And store and we could see that data on the user interface or on the UI. But at the same time, what is happening there? That data also gets stored inside the cache memory of your browser. Browser को भी एक cache memory होती है, right? So उसमें वो data store हो जाता है. So next time अगर आप same data call करते हो तो browser क्या करता है? सर्वर को फिर से रीच आउट करने के वजह वही डेटा एज इट इज डिस्प्ले कर देता है. सो इसलिए उसको कैशे क्लियर करना पड़ता है, राइट? सो नाउ वी विल ट्राई टू असाइन दैट पेज लेआउट दैट वी हैव डिजाइन्ड इन द मॉर्निंग सेशन right now. So Sonali, could you please proceed Yes, sir. and meanwhile explain how you are assigning, right? Yes. Go to Object Manager, search your object name, that is patient. Click on that object. Go to Page Layout tab. Then here it is, Patient New Layout. This is our page. So here it is the tab, Page Layout Assignment. Go to that tab. Click on that tab. Then Edit Assignment. Then select Page Layout here. Which one is your page layout? So patient new layout is our page layout. So select and assign to profile. So your You profile could is, see there, there were two page layout, right? One was the system generated page layout, which was having name patient layout, and another hmm, one is that was designed by us, that is patient new layout, right? So we yes. have selected that patient new layout. Now, Sonali, explain. Then go to your profile. That is your profile is system administrator. Click. For all the accounts that we have created, by default your profile is system administrator. We can create our own profile also, like students, professor, but we will not go into that much of detail. Your profile is system administrator, right? Click on that profile. Then again, No, how over ah, there you could have you can see that zero. What is that? that Zero is selected or 0 selected and 1 change. आया था पहले, लेकिन अभी हमने फिर से पेज लेआउट सिलेक्ट कर लिया हमारा जो हमने बनाया था. तो यहाँ पे आपका आएगा 1 सिलेक्टेड 1 चेंज. देन सेव.
आ गया वहां पे? check here whether it is changed or not. Yes, it is changed now. That is a patient new layout. Then go to your app, search your app name, select patient, new patient. Here it is changes. Right now you can see that it is in the 2 column, but earlier it was single column. Even you can check in your system, it is single column by default. The layout designed by the Salesforce, it is a single column. और इसमें अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस भी आए हैं, राइट? क्या है वो सेक्शन? बेसिक इंफॉर्मेशन एंड और दूसरा कौन सा है मैम सोनाली? Hospital detail. So two sections are there. In earlier, it was not categorized like this. So we can modify this page layout in such a way that we are in need of. Now, अगर मुझे आपका अभी एडमिन ये कौन सा है? प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? अभी सपोज कंसिडर करो इसमें और एक प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, राइट? जस्ट एग्जांपल लो, इसमें इसके अंदर एक प्रोफाइल है डॉक्टर, तो हमने और एक पेज लेआउट डिजाइन किया, और अगर हमने उस पेज लेआउट में, राइट, उस पेज लेआउट में वो फील्ड्स, अगर कुछ फील्ड्स निकाल दिए लाइक फीस, देन हॉस्पिटल शेयर, राइट, ये फीस निकाल दिए और वो उसको सेव करेंगे, तो डॉक्टर, जो भी कोई बंदा लॉगिन करेगा जिसका प्रोफाइल डॉक्टर रहेगा, तो उसको फील्ड्स नहीं दिखेंगे। बट एट द सेम टाइम आप अगर लॉगिन करोगे, क्योंकि हम 10 प्रोफाइल के लिए 10 अलग अलग पेज लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, कितने भी प्रोफाइल हो हम उसके अकॉर्डिंगली पेज लेआउट डिजाइन करेंगे। सो जिसमें हम वो फील्ड्स डालेंगे उसी प्रोफाइल को फील्ड्स दिखेंगे, और जिसको हमें वो फील्ड्स नहीं दिखाने उसमें सिंपली नहीं डालेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? एनी क्वेरी? हाँ सर। So apart, हाँ, okay, very good. So apart from this, सबने ये कर लिया, पेज लेआउट डिजाइन किया था in the morning as per the morning session. Yes sir. हाँ, so now do one thing, assign that page layout to your object. You can follow this recording also. And और किसी को कुछ issue till this point? सुबह के टास्क सबने कंप्लीट किया? So can I consider you have completed the morning task? Please do these activities very vigorously. Yes, sir. Yeah, very good. So at the end of your this internship program, before giving the certificate, you need to share some PDF document. Then I will tell you that how to generate that document. It will give me all the activities that you have done. Okay. So another thing is that in tomorrow's session, we will discuss very important topic, that is automatic email triggering. For example, what we will do, we will have some patient. As soon as वो पेशेंट क्रिएट करेंगे हम, राइट, अभी जैसे हम पेशेंट बना रहे हैं, वो पेशेंट को एक मेल जाएगा कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है और आपका टाइमिंग ये है, सो प्लीज बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम. This is just one example we can have. We can have multiple several emails automatically triggered. जैसे उसको हम शेड्यूल भी कर सकते हैं. इस केस में वो शेड्यूल का सिनेरियो नहीं बैठेगा. शेड्यूलर हम कब यूज करते हैं? जैसे आफ्टर 30 मंथ, सॉरी आफ्टर 30 डेज आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट करना हो, या फिर आपके मोबाइल का बिल हो, या व्हाटएवर, जो भी मंथली बेसिस पे जो भी चीजें चलती है, राइट, उसका बिल जनरेट करके आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर अगर भेजना है, ऑटोमेटिक ईमेल भेजना है, सो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दिस ईमेल ट्रिगरिंग, राइट, ऑटोमेटिक. इसके लिए सेल्सफोर्स ने एक एडिशनल फंक्शनैलिटी दी है नोन एज वर्कफ्लो. तो उसमें 4 तरह के वर्कफ्लोज हम डिजाइन कर सकते हैं, राइट. सो एक तो है उस फील्ड अपडेट करके एक है ईमेल ट्रिगरिंग, तीसरा होता है टास्क असाइनमेंट. टास्क असाइनमेंट मैंने आपको बताया था, टाटा स्काई का एग्जांपल लेके
कि हमने कॉल सेंटर को फोन किया, बट वो टास्क किसको असाइन होता है? लोकल टेक्नीशियन को, राइट? टाटा स्काई ऑफिस, इट मे बी इन एनीवेयर इन द इंडिया, दे माइट बी फंक्शनिंग at from any location of India, but the local technician, he or means he will reach to your local address within 1 hour or 2 hour, it's so, right? So that is what the task assignment, right? So field update is also like, for example, agar now this Salesforce is actually a global software or the global thing which is used. Now for example, India में taxation अलग अलग है, या इंडिया में भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैक्स है. यू माइट हैव हर्ड दैट इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए 18% है, कुछ चीजों के लिए 28% है, फूड के रिलेटेड जो चीजें उसके लिए आई थिंक 5% है. सो अलग अलग जीएसटी अलग अलग चीजों के लिए है. ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सो मैंने अगर मुझे कुछ चीज अगर कोई, और मेरी एक कंपनी है, राइट? मेरी एक कंपनी है, मेरे कंपनी में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भी बेचता हूँ, या फिर सुपरमार्केट में भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी हो सकते हैं, या फिर फूड के रिलेटेड चीजें भी हो सकती है, राइट? जैसे आयरन हो या फिर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें है ना, वो चीजें हो सकती है. सो एट दैट टाइम वो जब बिल बनाता है बंदा, राइट, वो बिल बनाते समय इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेगा, राइट, तो उसको ऑटोमेटिकली जीएसटी 18% लगेगा, राइट? और जब वो फूड के रिलेटेड कोई चीज लेगा तो उसको जीएसटी 5% लगाना पड़ेगा. सो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ता है? ये जो जैसे ही सपोज एक पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट मतलब ड्रॉप डाउन में से वो जो बिल काउंटर पे जो बंदा है, ही विल सिलेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. एज सुन एज ही विल सिलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटोमेटिकली जीएसटी का जो फील्ड या फिर टैक्स नाम का जो फील्ड है वहां पे 18% आना चाहिए. एंड इफ वी सिलेक्ट फूड रिलेटेड आइटम तो ऑटोमेटिकली वहां पे 5% आना चाहिए. सो दैट इज व्हाट नोन एज फील्ड अपडेट. इसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड अपडेट. सो तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी है. एक तो है वर्क फ्लो में 3 ऑटोमेशन आते हैं, सॉरी 4 ऑटोमेशन आते हैं. फर्स्ट होता है ईमेल ट्रिगरिंग, सेकेंड होता है टास्क असाइनमेंट, थर्ड होता है फील्ड अपडेट, राइट, एंड फोर्थ होता है सेंडिंग आउटबाउंड मैसेजेस. बट ये आउटबाउंड मैसेज करने के लिए हमें एक अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, अलग से कुछ पैसे उसमें डालने पड़ते हैं, तब जाके हम कुछ आउटबाउंड मैसेजेस कर सकते हैं. या फिर आपको आपकी सिस्टम किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है, जैसे एसएपी हो, जो भी डेटाबेस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है. तो एसएपी है, सेल्सफोर्स है, एसएफडीसी सेल्सफोर्स, मेरी सेल्सफोर्स ऑर्ग है. ये आपको जो सेल्सफोर्स का अकाउंट मिला है वो आपके कंपनी का है, आपके फ्रेंड को जो मिला है वो उसका पर्सनल है. तो एक सेल्सफोर्स अकाउंट में से दूसरे सेल्सफोर्स अकाउंट में भी डेटा शेयर करने के लिए हमें कुछ इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, राइट? सो हम वो वाला ऑटोमेशन नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज आउट ऑफ स्कोप. So we will start these automations one by one. Tomorrow we will see this email triggering. That is very very important. Even in our last batch, what we were doing, we have created one object. जैसे हम patient बना रहे हैं ना, राइट? सो हमने एक फॉर्म बनाया था, जैसे आपको गूगल फॉर्म मिला है अभी, आपने अब उसके अंदर आपके डिटेल्स भरे होंगे, राइट? तो वो डिटेल्स हमें आ जाते हैं. बट लास्ट टाइम वी हैव डन इट फ्रॉम द सेल्सफोर्स ओनली, राइट? सो वो भी हम नेक्स्ट इसमें करेंगे. मतलब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम एक गूगल फॉर्म नॉट गूगल फॉर्म बनाएंगे. जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, इसमें पेशेंट बनाने के लिए सीधे पेशेंट ऑब्जेक्ट पे जाते हो, न्यू पेशेंट पे क्लिक करते हो, एक फॉर्म खुलता है और डेटा सेव करते हैं और डेटा आपके सेल्सफोर्स में सेव हो जाता है, राइट? बट अगर कोई बंदा बाहर से करना चाहे तो सेल्सफोर्स में लॉगिन ना किए हो, मतलब अभी ये मेरा सेल्सफोर्स अकाउंट है, मैं अगर आपको एक लिंक दूं और बोलूं कि वो लिंक पे जाओ और फॉर्म भरो और वो डेटा मेरे सेल्सफोर्स में आ जाए, right? That also we can do. So as soon as that person fills that form, वो जैसे ही वो बंदा फील भरेगा, स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट है अभी, नाउ व्हाट वी आर डूइंग,
we are giving some email confirmation to all the students from our HR. हमारा HR आपको मेल कर देता है कि आपका registration confirm हो गया है for this internship program. So we can also have that automation. I can show you that automation live if time permits tomorrow or on Monday, right? Mostly tomorrow only we can complete that. As soon as we complete, we press on that save button, patient का save button, patient को mail जाएगा कि your appointment is fixed. Similarly, हमारे केस में भी हम ये कर सकते थे कि जैसे ही स्टूडेंट, जैसे ही आप वहां पे फॉर्म भर रहे हो, राइट, आपने सारा डिटेल्स डाला, नाम डाला, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और पेमेंट करने की रिसिप्ट, राइट, उसका प्रूफ जैसे ही आपने सेव किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम विल जनरेट एन ईमेल कि भाई आपका ये कंफर्म हो गया है, right? That also we can do automation. So tomorrow we will discuss about that email triggering. So be available for that section for the tomorrow's session because it is very, very important. Apart from this, if anybody having any issue, then let's discuss here. Otherwise, let's wind up today's session. Any issue to anybody? No, sir. Okay. Okay, then very good. Okay, students, then we will wind up today's session. Let's meet on tomorrow morning. Thank you.